اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم آلہ و صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوق تقاضا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صاف ستھرا پاکستان۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے ہر طرف خصوصاً پنجاب میں، کراچی میں یہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس میں مطلب بے دریغ جو ہے اس کا اپنے اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس سے بہت سے ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں جو کہ یعنی اس کے وہ قصوروار نہیں ہوتے۔ تو معزز ناظرین، اس سے جیسے کہ گندم کے ساتھ گیند پس جاتا ہے، اس طرح وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ جہاں تک بلڈنگ انکروچمنٹ کا تعلق ہے یا مارکیٹوں میں انکروچمنٹ کا تعلق ہے، تو یہ حکومتی ادارے اس وقت کہاں سوئے ہوتے ہیں جب یہ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، اور باقاعدہ اس میں وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنا حصہ کھڑا کر لیتے ہیں، پھر جب بھی چند سالوں بعد، چند ماہ بعد جو ہے وہ سارا نظرہ جو ہے وہ دکانداروں پہ گر جاتا ہے، جو اس پہ جو بھی کرتے ہیں۔ انکروچمنٹ کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل یعنی کہ نجائز ہے، اور جہاں پہ خصوصاً جہاں ٹریفک کا جو ہے وہ نظام در پر ہوتا ہے، اور یہاں پہ پیدل چلنے والے پیڈسٹرین کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے حکومت کا ہے یا حکومتی اداروں کا ہے، جو اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، اور ہماری جو ٹاؤن پلاننگ ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں، پتہ نہیں وہ یونیورسٹیوں میں جو پڑھ کے آتے ہیں وہ خالی ڈگریاں لینے کے لیے، نمبر لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں وہاں پہ جہاں ہوں، مختلف گلف کنٹریز میں رہا ہوں، تو اس وقت وہاں پہ آج کل تو کم ہو گئے ہیں، ونڈو ٹائپ اے سی ہوتے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ونڈو ٹائپ اے سی میں سے قطرہ قطرہ پانی جو ہے وہ ڈرپ کرتا رہتا ہے، اور عموماً وہ آؤٹ سائڈ رکھا جاتا ہے، تو وہاں اس کے نیچے بعض لوگ ڈبہ یا بکٹ وغیرہ، بالٹی وغیرہ رکھ دیتے تھے، اس کے بعد وہ پھینک دیتے تھے۔ تو وہاں پہ اگر فٹ پاتھ پہ آپ رکھتے تھے تو یہ سخت سے منع تھا۔ تو وہاں جو بھائی لاز ہے، جو ان کے جو اہلکار ہیں میونسپلٹی کے، کوئی عام مطلب اہلکار خاص خصوصی سپاٹ نہیں، جیسے ہمارے ادھر پیرا یہ طرح کوئی بنائے ہوئے، عام جو ورکر ہوتے ہیں وہاں پہ، جو وہاں پہ گشت کرتے رہتے ہیں، وہ آتے تھے، ایک دفعہ وہ وارننگ دیتے تھے فرسٹ ٹائم کہ آپ اس کو یہاں نہ رکھیں، یہاں پہ جو چلنے پھرنے والے ہیں ان کو رکاوٹ پیش ہوتی ہے، ان کو ٹھکریں لگتی ہیں۔ اور دوسری دفعہ جب آتے تو 1000 ریال یا درہم، جو تقریباً پاکستان 70,000 روپیہ بن جاتا ہے، وہ کرتے تھے۔ اگر اس کے بعد پھر آپ نے رکھا تو پھر کم از کم 1 ماہ کے لیے آپ کی دکان سے، اس کے بعد پھر کون جرت کرے گا؟ تو یہ ہے، یہاں پہ یہ ہوتا کیا ہے کہ 20 منزلہ پلازہ بن جاتا ہے، بعد میں وہ آتے ہیں ادارے والے، حالانکہ وہ پہلے سب کو ملوث ہوتے ہیں، وہ یہ جو یا حکومت بدل گئی اس وقت، وہ ان کی جو حکومت ہے وہ اس کی سیاسی سپورٹ ان کو حاصل ہے، جس طرح بھی جو انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوئی تھی انڈر ٹیبل، تو اس وقت تو کچھ نہیں بولتے۔ جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، جب کہ وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہاں جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو اس کے ٹیننٹسی آکوپینٹس ہوتے ہیں، جو مقصد جہاں پہ جو فلیٹس وغیرہ اپارٹمنٹ بک کرائے ہوتے ہیں، جو دکانیں بک کرائی ہوتی ہیں، ڈیولپر جو ہے وہ اپنا پیسہ اور منافع کھڑا کر چکا ہوتا ہے، تقریباً 2-3 منزلیں ہوتی ہیں، اس اپنا کر چکا ہوتا ہے۔ رول کون جاتا ہے؟ عام شہری، جن کی عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ چلے جاتی ہے، ان کو کی پینشن کا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے روپیہ جمع کر کے اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حکومتی ادارے یہ جو ہے ان کو اس وقت ہوش آتی ہے جب وہ پورا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ ہے۔ آج کل یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاؤن پلاننگ والے ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں جو اس کو، وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیے انگریزوں نے یہاں پہ پنجاب میں مختلف جگہوں پہ
चक काटे हैं यानी गांव काटे हैं, तो वहां पे आपको 100 से 200 फुट चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं, और ज्यादातर ऐसी हैं जो नए उन्होंने काटे हैं। और दूसरे सिटी भी जो काटे हैं, मतलब फैसलाबाद जो है उसकी आपको टाउन प्लानिंग देख लें, कितनी कितनी पूरी सड़कें हैं। और भी जैकोबाद और इस तरह के और भी बहुत से जो जो काटे हैं उन लोगों ने, शायद जो जो उन्होंने डिजाइन किए हैं, प्लान किए हैं, तो उन्होंने उन सब चीजों को मद्देनजर रखा है। लेकिन हमारे इदारे तो ये सोचते नहीं है, ना ही हमारे मतलब है कि ये टाउन कमेटियाँ या जो म्यूनसिपल कमेटी या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो भी है वो नहीं सोचते। हाँ, इसमें एक चीज आप देखें, अयूब खान के जमाने में जो मार्केटें बनी थी उनके सामने साफ बरामदे थे। किसी भी कार्रवाई से पहले, किसी भी मतलब डिजाइन से पहले, मार्केट बनाने से पहले, जो भी है उस इलाके की सकाफत को, कल्चर को और मौसम को ख्याल में रखा जाता है, ये ख्याल किया जाता है। हर मुल्क में ये, हर जगह पे ये है, और पाकिस्तान में भी शुरू में ऐसा ही था। मतलब यूब खान के ज़माने में जो मार्केटें बनी आप देख लें, अब बरामदे हैं, सड़कें खुली हैं इस तरह की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग, कसूरवार तो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, लेकिन वो सारा नज़ला जो है वो गरीब आवाम पे गुजरता है, गिरता है, खुसूसन जो रेहड़ी वाले होते हैं। हालांकि आप इवन के, मैं हरम शरीफ में गया था तो वहाँ पे भी देखा कि कुछ लोग नीलामी बेचते हैं। वो इदारे आते ज़रूर हैं, उनको भगा भी देते सम टाइम, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि मेन रोड छोड़ के वो बिल्डिंगों के बैक साइड पे, वहाँ पे मतलब चाय की दुकानें थी, तो टेबल वगैरह लगा के चाय थोड़ा बहुत खाना भी। इवन के यूएई के अंदर भी ऐसा है कि आप मेन रोड छोड़ के बैक साइड पे लोग बैठ के वो शीशा वगैरह पीते थे, वो बेंच खास किस्म के काफी लगे होते हैं। कतर में भी मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन यहाँ पे हुकूमतें जो है वो अंधाधुंध, अंधे की लाठी वाला हिसाब है। और यहाँ पे बहुत से उन्होंने, जो हमारे खांचा फरोश थे, या वहाँ पे जो पानी छोटे मोटे, इवन जो गले में लटका के बेचते थे, ये तो वहाँ भी, इवन के इंग्लैंड में भी तो मना नहीं है। अब जहाँ दोस्त रहते हैं तो वहाँ भी सब वो कहते, दो शर्तें हैं। कहते हैं एक शर्त ये है कि आप ट्रैफिक में खलल ना डालें, दूसरी शर्त ये है कि आप जो पैदल चलने वाले, इसके अलावा वो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पे हालत ये है कि कुछ लोगों को यहाँ मार्केटों से दूर जो है, कुछ लोगों को जगह अच्छी मिल गई है और वहाँ धकेल दिया गया, जहाँ वहाँ कस्टमर है उनकी सैलरी 30 से 40% रह गई है, और उसके बाद जो है वो फाका कशी का शिकार है। तो इस तरह हुकूमतों को चाहिए कि वो जो है कोई भी ऑपरेशन करने से पहले अपना जो है होमवर्क कर ले। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो गंद है वो खुद सब हुकूमती इदारों में डाला हुआ है। अब आप क्या देख लें, जो शहरों के उनके बुरे हालात हैं। अब कुछ इलाकों में सुना है कि वो उसकी कर रहे हैं, मतलब रेनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि वाल सिटी लाहौर हो गया, फैसलाबाद, कचहरी बाजार, कुछ और बड़े बड़े शहरों में ये कर रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ अच्छी बात है कि अभी जो नई हाउसेस स्कीमें बन रही हैं या टाउन्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे ये अंडरग्राउंड केबल लिंक सिस्टम है और वहाँ से बेहतर है। लेकिन जो पुराना सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा गंदगी देखने वाला तो जो उन्होंने वहाँ पे, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी जानवर का एक घोंसला है ये। तो और उसकी वजह से खुद उन इदारों को भी नुकसान है। एक तो उनके लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, यानी वापटा के, दूसरी बात के अपने एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो भी कदम उठाना है उससे तरह का पहले होमवर्क कर ले। हुकूमतें अपने हिस्से का काम नहीं करती इदारे। अब मैं दूसरी आपको एक और मिसाल देता हूँ। अंग्रेज़ों ने जब ये शहर आबाद किए, मंडियाँ आबाद की, उन्होंने गल्ला मंडियाँ बनाई उसके अंदर और बाहर इतनी खुली जगह छोड़ी कि उनको पता था कि यहाँ बैलगाड़ियाँ भी आएंगी, यहाँ पे वो ट्रक भी आएंगे, अंदर भी है, तो उनके घूमने फिरने के लिए खुले खुले मतलब बाजार बनाए या खुली खुली जगह बनाई, और साइड भी इतनी जगह है कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी जो चुकी है, बाद में शायद ही कोई ऐसी जगह हो। अब दूसरी चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो गंदगी फैलती है रोडों के ऊपर, वो ये होती है कि जो ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ दुरुस्त करते हैं, वहाँ पे इंजन वगैरह भी खोल लेते हैं। अब ज़ाहिर है वो दुकान के अंदर तो जा नहीं सकते। लेकिन इसमें हुकूमत का क्या कसूर है कि वो मतलब आज तक कोई ऐसी यानी हर शहर में होनी चाहिए, जहाँ भी अड्डा वगैरह सवाए चंद यानी बस स्टैंड, उसके अलावा किसी भी रोड पे कोई ऑटो मार्केट, जहाँ पे बॉडी वगैरह रिपेयर हो सके या गाड़ियाँ खड़ी ज़्यादा तादाद में हो सके, कोई बनाई है। उनको चाहिए गवर्नमेंट को अभी भी जगह एक्वायर करे, वो वहाँ पे अंदर बाकायदा जो ऑटो मार्केट बनाए, जैसे गल्ला मंडी बनती है, ताकि उसके अंदर जाके गाड़ियाँ दुरुस्त हों और ये बाकी जो रोड है उस पे गंदगी ना, तेल ना फेंका जाए। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है, ये पंक्चर की दुकानें और थोड़ा मोटा इलेक्ट्रिकल काम, ये बड़े बड़े
ये मॉडर्न शहरों में भी वहाँ रोड होता है, कभी वहाँ गाड़ी बंद हो गई है तो क्या करेगा? तो दूर जाने से रहा वहीं पे छोटा-मोटा काम कर लेगा, या टायर पंचर है तो वो तो दूर जाके किसी मार्केट में जाने से रहा तो वहीं हो जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं, वो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा इसकी मार्केटें बना ली हैं, जगह मखसूस कर दी है, वहाँ पे जाके वो काम होता है। तो नाज़रीन, ये आपका मेरा वीडियो कैसा लगा है, और हुकूमती इदारों से भी दरख्वास्त है, तो ये जो अभी लोग हैं वो फाकाकशी का शिकार हैं, ऐसे अंधाधुंध इवन कि बाज़ जगह ये अपने एहलकार जो है ना, वो ऐसी प्राइवेट जगहों पे घुस जाते हैं, उन पे अख्तियारात के लिए, जो हालाँकि उनका कोई तल्लुक ही नहीं होता है, तो प्राइवेट मार्केटों में बाज़ारों में भी जाके वो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ये चीज़ हमारे मैंने खुद देखा। हालाँकि वो प्राइवेट जगह मार्केट जगह भी ऐसी मेन रोड भी नहीं है, उसके बावजूद उनको भी ज़रा थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए, और लोगों के साथ पहले उनके लिए रोज़ी का, उनके रोज़ी के अड्डों का बंदोबस्त मुनासिब जगह दी जाए, जहाँ पे अपनी रोज़ी कमा सकें, तो उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें। और दूसरी चीज़ है कि जो भी इंक्रोचमेंट होती है, इसमें हुकूमती इदारे के अहलकार, मैं तो नहीं कहता हुकूमती इदारे के अहलकार मुलव्वस होते हैं, उनका भी मुहासबा करना चाहिए। वो अपने पैसे खड़े कर लेते हैं, और उससे एक ऊपर आता है, दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई होती है। उसके बाद जो फिर तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है, मुल्की सरमाया भी ज़ाया होता है, लोगों को भी परेशानी होती है। कि तो नाज़रीन, ये देखिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और हुकूमती इदारों से भी दरख्वास्त है, वो इस पे गौर करें और लोगों को नजायज़ तंग न किया जाए, और एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे व्लॉग को, और उसके साथ इस पे कमेंट्स करें, और इसमें आप भी हिस्सा डाल सकते हैं, आप भी कोई ऐसी बना के गवर्नमेंट को मशवरा दे सकते हैं, उसके अंदर शेयर करें अपने कमेंट्स के अंदर, और आप हुकूमत को इस पे मजबूर करें कि वो लोगों को नजायज़ तंग ना करे, और अपना होमवर्क सही तरीके से करें। ओके, जाक अस्सलाम वालेकुम।